اسلام میں عورت کی عزت و حیا اور پردہ بہت زیادہ اہم ہے۔ جو عورتیں باہر بازاروں میں بن سنور کر، خوشبو لگا کر اور میک اپ کر کے اس نیت سے نکلتی ہیں کہ غیر محرم مرد ان کی طرف متوجہ ہوں، اس بارے میں احادیث مبارکہ میں سخت وعیدیں آئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: جو عورت خوشبو لگا کر لوگوں کے پاس سے اس لیے گزرے کہ وہ اس کی خوشبو کو محسوس کریں تو وہ گناہ کے اعتبار سے زانیہ کے حکم میں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ترجمہ: دوزخ والوں کی دو قسمیں ہیں جنہیں میں نے دیکھا ہے، ایک وہ عورتیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہیں، دوسروں کو مائل کرنے والی اور خود مائل ہونے والی ہیں، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو کو پا سکیں گی۔ ان حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ عورت کا بناؤ، سنگار اور زینت و زینت اصل میں اپنے شوہر کے لیے ہے، نہ کہ غیر محرموں کے سامنے نمائش کے لیے۔ جب عورت بازاروں میں میک اپ کر کے، خوشبو لگا کر، نمایاں لباس پہن کر نکلتی ہے تو یہ دوسروں کے لیے فتنہ بن سکتی ہے اور خود اس کے لیے بھی گناہ کا سبب بنتی ہے۔ اسلام عورت کو روکتا نہیں ہے بلکہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اور پردہ اور سادگی عورت کی عزت کو بڑھاتے ہیں، جبکہ بے پردگی و نمائش وقتی توجہ تو دلاتی ہیں مگر عزت کو کم کر دیتی ہیں۔ لہٰذا ہر مسلمان عورت کو چاہیے کہ وہ باہر نکلتے وقت سادہ لباس اختیار کریں، خوشبو اور میک اپ کی نمائش سے بچیں اور اللہ پاک کے احکامات کو مقدم رکھیں۔ یہی اس کی کامیابی اور عزت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حیا، پردے اور دین پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کے معاشرے میں ایک افسوسناک رویہ یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کچھ مرد اپنی بیوی کے کہنے پر آ کر اپنے ماں باپ سے لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، ان کی نافرمانی کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے دل کو دکھاتے ہیں۔ یہ طرز عمل نہ صرف غیر اخلاقی طور پر غلط ہے بلکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق بھی خلاف ہے۔ اسلام میں بیوی کے حقوق بھی بیان کیے ہیں اور والدین کے حقوق بھی، لیکن والدین کا مقام انتہائی بلند رکھا ہے اور ان کی نافرمانی کو سخت گناہ قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رضا اللہ فی رضا الوالد و سخط اللہ فی سخط الوالد۔ ترجمہ: اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، جنت تحت الاقدام الامہات، جنت ماں باپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ ان حدیث سے صاف ظاہر ہوتے ہیں کہ والدین کی خوشی اور خدمت کتنی اہم ہے۔ جو شخص اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر اپنے ہی ماں باپ سے بدتمیزی کرتا ہے، ان سے لڑتا ہے، ان سے جھگڑتا ہے یا ان کا دل دکھاتا ہے، وہ دراصل اللہ پاک کی ناراضگی کو مول لے رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، بیوی کا حق اپنی جگہ، لیکن وہ کبھی بھی والدین کے حق سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ اسلام ہمیں توازن سکھاتا ہے۔ ایک نیک شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے اور اپنے والدین کے ساتھ بھی عزت اور احترام کا رویہ رکھے۔ اگر بیوی کسی غلط بات پر اکسائے تو شوہر کا فرض ہے کہ حکمت اور نرمی کے ساتھ اسے سمجھائے، نہ کہ والدین کے خلاف ہو جائے۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا۔ اس لیے جو لوگ اپنی بیوی کی وجہ سے اپنے والدین سے لڑتے ہیں انہیں فوراً اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، ورنہ دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ وہ انصاف اور توازن سے کام لے، اپنی بیوی کو بھی خوش رکھیں مگر والدین کی عزت اور اطاعت کو ہرگز قربان نہ کریں۔ والدین کا دل دکھانا بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، آمین ثم آمین۔ آج کے دور میں ایک اور سنگین مسئلہ ہمارے معاشرے میں تیزی سے پھیل رہا ہے اور وہ ہے یہ کہ اولاد اپنے والدین کی قدر نہیں کرتی، ان کی بات نہیں مانتی، بلکہ بعض اوقات ان کے ساتھ بدتمیزی بھی کرتی ہے اور یہاں تک کہ انہیں گھر سے نکال دیتی ہے۔ یہ رویہ نہ صرف اخلاقی زوال کی علامت ہے بلکہ اسلام کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اور ان کے ساتھ بدتمیزی کو سختی سے منع فرمائے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم اپنے رب کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ ہی انہیں چھڑکو، بلکہ ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو۔ غور کریں، جہاں اف کہنے سے منع کیا گیا وہاں ان کو گھر سے نکال دینا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वालिदैन की नाफरमानी को बड़े गुनाहों में शुमार किया। और एक हदीस मुबारक का मफहूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाहों के बारे में ना बतलाऊं? सहाबा किराम ने अर्ज किया, जरूर या रसूलुल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ शिरक करना और वालिदैन की नाफरमानी करना। इस हदीस पाक से वाज़ेह होता है कि वालिदैन की नाफरमानी कोई मामूली बात नहीं बल्कि बहुत बड़ा जुर्म है। आज कुछ लोग अपनी बीवियों या दुनियावी मामलात की वजह से अपने माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं। जबकि वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, उन्हें सहारा और मोहब्बत की जरूरत होती है, तो बास नाफरमान औलाद उन्हें घर से निकाल देती है या ओल्ड रूम हाउस में छोड़ाती है। याद रखें, जिस तरह तुम अपने वालिदैन के साथ सलूक करोगे, कल तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ वही सलूक करेगी। ये दुनिया मकाफात अमल की जगह है और इस्लाम हमें सिखाता है कि वालिदैन के कदमों के तले जन्नत है। एक हदीस पाक का मफहूम है कि जन्नत माँ बाप के कदमों के नीचे है। इसका मतलब ये है कि जो शख्स अपनी माँ की खिदमत करता है, उसका ख्याल रखता है, अल्लाह ताला उसे जन्नत की खुशखबरी देता है। इसी तरह बाप के बारे में भी फरमाया गया कि वो जन्नत के दरवाजों में से बेहतरीन दरवाजा है। आप तुम चाहो तो उसे ज़ाय कर दो या उसे महफूज रखो। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन की कदर करें, उनके साथ नरमी और मोहब्बत और एहतराम से पेश आएं, उनकी खिदमत को अपनी सआदत समझें और कभी भी उनका दिल ना दुखाएं। अगर माजी में हमसे कोई गलती हो भी गई हो तो फौरन तौबा करें और उनसे मुआफी मांगें। अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और हमें उनकी नाफरमानी जैसे बड़े गुनाहों से बचाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं जो हमारे मुआशरे के लिए एक बड़ा फितना बनता जा रहा है, और वो है सोशल मीडिया, ख़ुसूसन गैर इस्लामी मवाद फैलाओ। ये एक ऐसी हकीकत है कि जिससे आंखें बंद नहीं की जा सकती। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस फितने में मर्दों के साथ साथ बहुत सी मुसलमान खवातीन भी शामिल हो चुकी हैं। इस्लाम ने औरत को इज्जत, वकार और पर्दे का हुक्म दिया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि मोमिन औरतें अपनी निगाहें नीचे रखें और अपनी जीनत को जाहिर ना करें। यह हुक्म किसी जबर या तंगी के लिए नहीं है, बल्कि औरत की इज्जत, वकार, तहफ़्फ़ुज़ और मुआशरे की पाकीज़गी के लिए है। लेकिन आज सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि कुछ खवातीन अपनी वीडियोस के जरिए ना सिर्फ अपनी नुमाइश कर रही हैं, बल्कि लाखों लोगों तक बेहयाई को फैला रही हैं। टिकटॉक और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर लाइक्स, व्यूज, फॉलोअर्स की दौड़ ने नीयतों को खराब कर दिया। शैतान ने इंसान को छोटे गुनाहों से शुरू करते करते फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े गुनाहों की तरफ ले जाया जा रहा है। इब्तिदा में सिर्फ एक वीडियो है, फिर उसमें थोड़ी सी नुमाइश है, फिर म्यूजिक है, फिर रक्स है और फिर मुकम्मल बेपर्दगी है। ये एक ऐसा रास्ता है जो इंसान को अल्लाह से दूर करता चला जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी बुराई की तरफ बुलाता है उस पर उस बुराई का गुनाह भी होगा और उस पर अमल करने वाले का भी उसके ऊपर होगा। गौर करें, जब एक वीडियो लाखों लोग देखते हैं, उसको शेयर करते हैं, उससे मुतासिर होते हैं, तो उसमें गुनाह कितना बढ़ जाता है। यह सिर्फ एक लम्हे की वीडियो नहीं है, बल्कि एक जारी सदका गुनाह, सदका जारिया का उल्टा बन जाता है। ये बात भी समझने की है कि औरत का असल हुस्न उसकी हया में है, ना कि उसके जिस्म की नुमाइश में। जो औरत अपनी इज्जत को खुद सस्ता बना देती है, दुनिया उसे वक्ती शोहरत तो दे देती है मगर इज्जत नहीं देती। लोग उसकी वीडियोस देखते हैं, तबसरे करते हैं, मगर दिल ही दिल में उसके लिए इज्जत बिल्कुल नहीं रखते। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि कयामत के दिन हर चीज का हिसाब होगा। हर वीडियो, हर हरकत, हर नजर, सब कुछ अल्लाह पाक के सामने पेश होगा। उस दिन ना फॉलोअर्स काम आएंगे, ना लाइक्स काम आएंगे, ना व्यूज काम आएंगे, सिर्फ आमाल का हिसाब होगा। मेरे उन बहनों से दर्द भरी गुजारिश है जो इस रास्ते पर चल रही हैं, अल्लाह के लिए रुक जाएं। अभी वक्त है अपनी इज्जत को पहचानें। यह सस्ती नहीं है। सोशल मीडिया की वक्ती शोहरत के बदले में अपनी आखिरत को बर्बाद ना करें। तौबा का दरवाजा अभी भी खुला है। अल्लाह बहुत माफ करने वाले हैं। और वालिदैन और मुआशरे के लिए भी पैगाम है कि अपनी बेटियों की तरबियत पर तवज्जो दें, उनके मोबाइल्स और सोशल मीडिया इस्तेमाल पर नजर रखें।
उन्हें दीन की तालीम दें, हया और पर्दे की उनको अहमियत समझाएं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर किस्म के फितने फसाद से महफूज रखे, हमारी माँ हमारी बहनों को हिदायत दे और हमें सोशल मीडिया को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करने की तौफीक भी दे। आमीन सुम्मा आमीन। यह पैगाम सिर्फ तनकीद के लिए नहीं है बल्कि इस्लाह के लिए है। अल्लाह हमें समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। आमीन। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिसमें मर्द और औरत दोनों के लिए पाकीज़गी, हया और इज्जत की तालीम दी गई है। औरत को इस्लाम ने बहुत बुलंद मकाम अता किया है। उसे माँ, बेटी, बहन, बीवी की सूरत में इज्जत दी गई, लेकिन उसी के साथ उसे पर्दे का हुक्म भी दिया गया था ताकि उसकी इज्जत और हिफाजत कायम रहे। जो औरत पर्दा नहीं करती वो दर हकीकत अपने मकाम और इज्जत को खुद कम कर रही है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़ेह हुक्म दिया कि मोमिन औरतें अपनी जीनत को जाहिर ना करें और अपने आप को पर्दे में रखें। यह हुक्म किसी पाबंदी के लिए नहीं है बल्कि औरत की हिफाजत और मुआशरे की पाकीज़गी के लिए है। आज के दौर में फैशन मीडिया और सोशल मीडिया ने पर्दे की अहमियत को कम कर दिया। बहुत सी औरतें ये समझती हैं कि जदीद होना, फैशनेबल होना और खूबसूरत नजर आना बेपर्दगी के बगैर मुमकिन नहीं है, हालांकि असल खूबसूरती हया में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया ईमान का हिस्सा है और जब हया खत्म हो जाती है तो इंसान गुनाहों की तरफ आसानी से मायल हो जाता है। बेपर्दगी के नुकसान सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं है बल्कि आखिरत में भी उसका हिसाब देना होगा। जब एक औरत बगैर पर्दे के बाहर निकलती है, गैर मुहर्रमों की नजर का मरकज बनती है, तो वो न सिर्फ खुद गुनाह में मुब्तला होती है बल्कि दूसरों के लिए भी फितना बन जाती है। याद रखें, पर्दा कैद नहीं है बल्कि इज्जत है, हिफाजत है और अल्लाह पाक का हुक्म है। जो औरत अल्लाह पाक के हुक्म पर अमल करती है, अल्लाह ताला उसकी इज्जत को मजीद बुलंद करता है और उसे दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाता है। लिहाजा हर मुसलमान औरत को चाहिए कि अपने लिबास और चाल चलन में हया इख्तियार करे, पर्दे को अपनी पहचान बनाए और अल्लाह पाक के हुक्म को दुनिया की ख्वाहिशात पर तरजीह दे। अपनी जिंदगी को इस्लामी असूल के मुताबिक गुजारें। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमान औरतों को सही राह से दिखाए, पर्दे की अहमियत समझने उस पर अमल करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए और हमें हर किस्म के फितने फसाद से महफूज रखे। आमीन। आज के जदीद दौर में जहालत, सेहत और तंदुरुस्ती को अहमियत दी जा रही है, वहीं फिटनेस के नाम पर एक नया फितना भी जन्म ले चुका है। इस्लाम हमें जिस्मानी सेहत का ख्याल रखने की तालीम तो देता है, लेकिन हदूद के अंदर रहते हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का मजबूत जिस्म कमजोर जिस्म से बेहतर है, मगर उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है इंसान फिटनेस के नाम पर बेहयाई, नुमाइश और गुनाहों में मुब्तला हो जाए। आजकल सोशल मीडिया पर फिटनेस का जो रुझान चल रहा है उसमें मर्द और खवातीन अपनी जिस्मानी नुमाइश को कामयाबी समझने लगे हैं। जिम कल्चर में गैर मुहर्रम मर्द और औरत का इख्तलाफ आम हो चुका है। तंग और जिस्म को नुमाया करने वाले लिबास पहने जाते हैं और अपनी तस्वीर और वीडियोस दूसरों को दिखाना एक फख्र समझा जाता है। यह सब चीजें इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है। इस्लाम हया को ईमान का हिस्सा करार देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया ईमान का हिस्सा है, मगर आज फिटनेस के नाम पर हया को पसे पोस्ट डाल दिया गया है। नौजवान नस्ल अपने जिस्म को दिखाने, सेक्स पैक बनाने और दूसरों को मुतासिर करने में इस कदर मगन हो चुकी है कि वह अल्लाह पाक की रजा को भूल बैठी है। यह भी एक हकीकत है कि बहुत से लोग फिटनेस को दिखावे और शोहरत का जरिया बना लेते हैं। नीयत का खराब होना भी एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन अगर कोई शख्स सिर्फ लोगों को मुतासिर करने, लाइक्स और फॉलोअर्स हासिल करने के लिए फिटनेस कर रहा है तो यह अमल इखलाक से खाली हो जाता है और अल्लाह पाक के नज़दीक इसकी कोई हैसियत नहीं रहती। मज़ीद ये कि बाज़ लोग फिटनेस के नाम पर हराम चीज़ों का इस्तेमाल भी करने लगे हैं, जैसे कि गैर कानूनी सप्लीमेंट्स या जिस्म को नुकसान पहुंचाने वाले तरीके। इस्लाम हमें अपने जिस्म को नुकसान पहुंचाने से सख्ती से मना करता है। कुरान मजीद में वाज़ेह हुक्म है कि अपने आप को हलाकत में ना डालो। हमें समझना चाहिए कि इस्लाम एक मुतवाज़न दीन है और ना तो वो रहबानियत सिखाता है और ना ही बेलगाम आज़ादी।
फिटनेस रखना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ पर्दा, हया, नीयत की दुरुस्तगी और इस्लामी हदूद का खास ख्याल रखना भी जरूरी है। लिहाजा हमें चाहिए कि अपनी नीयत को खालिस करें, ऐसे माहौल से बचें जहां गुनाह का अंदेशा हो, पर्दे और हया का मुकम्मल ख्याल रखें, फिटनेस को इबादत और सेहत के लिए अपनाएं, ना कि दिखावे के लिए। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ बूझ अता फरमाए और हमें हर फितने फसाद से बचाए और हमें अपनी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारने की तौफीक दे। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का नूर बरसा है जो शख्स असर की नमाज के बाद ये कलमा 7 बार पढ़ेगा। नाज़रीन किराम, इस दुनिया की तेज रफ्तार जिंदगी में हर इंसान किसी न किसी परेशानी, बेसुकूनी और अंधेरे का शिकार है। कोई रिज़्क़ की तंगी में मुब्तला है, कोई बीमारियों से घिरा हुआ है, किसी के दिल में खौफ है, कोई मायूसी ने जगह बना ली है और कोई अपनी ही दुआओं से कबूलियत का मुंतजर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए ऐसे आसान और बाबरकत अमाल रख दिए हैं जिनके जरिए ना सिर्फ दुनिया की मुश्किलात आसान हो जाती हैं बल्कि दिलों को सुकून, रूह को नूर और जिंदगी को बरकतों से भर दिया जाता है। इन्हीं अमाल में से एक निहायत अजीम और नूर से भरपूर अमल वो है जिसका जिक्र आज हम आपके सामने करने जा रहे हैं। यह अमल असर की नमाज के बाद का है, एक ऐसा वक्त जिसके बारे में उलमा फरमाते हैं कि यह कबूलियत दुआ के खास लम्हात में से है। दिन भर की मसरूफियात के बाद जब बंदा अल्लाह पाक के हुजूर झुकता है, उसका दिल नरम होता है, आंखें नम होती हैं और जुबान से निकलने वाला हर लफ्ज सीधा अर्शे इलाही तक पहुंचता है। यही वो वक्त होता है जब अल्लाह ताला अपने बंदों पर खास नसर करम फरमाता है, उनकी दुआओं को सुनता है और उनकी हादसात को पूरा करने के लिए फैसले फरमाता है। अगर इस वक्त बंदा इखलास के साथ अल्लाह पाक का जिक्र करे तो उसकी तासीर कई गुना बढ़ा दी जाती है। आज हम जिस कलमे का जिक्र कर रहे हैं वो कोई आम जिक्र नहीं है, बल्कि एक ऐसा जिक्र है जिसके बारे में कहा जाता है कि जो शख्स इसे असर की नमाज के बाद सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ लेगा, अल्लाह ताला उसी वक्त उस पर अपनी खास नूर नाजिल फरमाता है, ऐसा नूर जो 7 जमीन और 7 आसमानों के नूर के बराबर होता है। जरा तसव्वुर करे वो बंदा कितना खुश नसीब होगा जिस पर अल्लाह का नूर बरसने लगे, जिसका दिल मुनव्वर हो जाए, जिसके चेहरे पर सुकून हो और आंखों में इत्मीनान आ जाए, जिसकी जिंदगी में हर तरफ आसानियां ही आसानियां हो। और ये नूर सिर्फ जाहिरी रोशनी नहीं बल्कि एक रूहानी ताकत है और एक ऐसी रोशनी जो इंसान के अंदर से अंधेरों को खत्म कर देती है। यह नूर गुनाहों की तारीकियों को मिटा देता है, दिल के जंग को साफ कर देता है और इंसान को अल्लाह पाक के करीब ले जाता है। जब अल्लाह का नूर किसी बंदे के दिल में उतरता है तो उसकी सोच ही बदल जाती है, उसके फैसले दुरुस्त हो जाते हैं और उसके रास्ते आसान हो जाते हैं, उसकी दुआएं जल्द कबूल होने लगती हैं। यही वो नूर है जिसके बारे में कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, यानी अल्लाह आसमान और जमीनों का नूर है। नाज़रीन, हमें यह समझना होगा कि जिक्र इलाही कोई मामूली अमल नहीं है बल्कि ये अल्लाह पाक के साथ ताल्लुक मजबूत करने का सबसे आसान और ताकतवर जरिया है। जब बंदा अल्लाह पाक का जिक्र करता है तो अल्लाह पाक भी उसे याद करता है और जब अल्लाह पाक अपने बंदे को याद करें तो उसकी जिंदगी में खैर बरकत का आना यकीनी हो जाता है। असर के वक्त यह खास कलमा पढ़ना न सिर्फ आपके दिल को सुकून देगा बल्कि आपके इर्द गिर्द एक ऐसा रूहानी हिफाजत का हसार कायम कर देगा जिससे शैतान भी दूर भागेगा। हर तरह की मुसीबतें से आपसे फासले पर रहेंगी। अक्सर लोग कहते हैं कि हमें सुकून नहीं मिलता, दिल बेचैन रहता है, नींद पूरी नहीं होती और जिंदगी में बरकत नहीं होती। तो उसका सबसे आसान हल यही है कि हम अल्लाह पाक की तरफ रजू करें और उसके जिक्र को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। खास तौर पर इन औकात में जिक्र करें जिनमें कबूलियत के दरवाजे खुले हुए होते हैं। असर का वक्त इन्हीं खास औकात में से एक है और अगर आप इसी वक्त में इस कलमे को सिर्फ और सिर्फ 7 मरतबा पढ़ने की आदत बना लें तो यकीन करें आप अपनी जिंदगी में हैरत अंगेज तब्दीलियां महसूस करेंगे। यह अमल ना सिर्फ वक्त मांगता है, ना पैसा, ना कोई खास मेहनत, सिर्फ चंद लम्हे और खुलूस से दिल चाहिए, लेकिन इसका असर इतना अजीम है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है और वो छोटे से अमल पर बड़े बड़े
इनामात अता फरमाता है। बस शर्त यह है कि हम यकीन के साथ, इखलास के साथ और मुकम्मल तवज्जो के साथ इस अमल को करें। तो आइए नाज़रीन किराम, आज ही अहद करें कि हम असर की नमाज के बाद इस बाबरकत कलमे को 7 मरतबा जरूर पढ़ेंगे। अपने दिल को अल्लाह पाक के नूर से रोशन करेंगे और अपनी जिंदगी को बरकतों, रहमतों और आसानियों से भर देंगे। शायद यही वो अमल है जो हमारी तकदीर बदल दे, हमारी दुआओं को कबूलियत बख्श दे और हमें अल्लाह पाक के करीब कर दे। क्योंकि जब अल्लाह का नूर किसी बंदे पर बरसने लगता है तो फिर उसकी जिंदगी में अंधेरा बाकी नहीं रहता, सिर्फ रोशनी ही रोशनी रह जाती है। मोहतरम नाज़रीन किराम, इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान हैं, जिनमें से एक नमाज भी है और उसका 5 फर्ज नमाजें मुसलमान की रूहानी जिंदगी का मरकज हैं। इनमें हर नमाज की अपनी खास अहमियत है, लेकिन असर की नमाज को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खास तौर पर अहमियत दी है। ये नमाज दिन के उस वक्त में पढ़ी जाती है जब इंसान अपनी मसरूफियात के अरूज पर होते हैं और उसी वजह से इस नमाज की अदायगी मोमिन की सच्ची बंदगी की अलामत समझी जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में मुतअद्दिद मकामात पर नमाजों का जिक्र फरमाया, लेकिन असर की नमाज को खसूसी अहमियत के साथ बयान किया। सूरह बकरा के अंदर इरशाद बारी तआला है, तमाम नमाजों की हिफाजत करो और दरमियानी नमाजों की भी, और अल्लाह पाक के हुजूर अदब से खड़े हो जाओ। उलमाए किराम की अक्सरियत के नजदीक अस्सलातुल वस्ता से मुराद असर की नमाज है। इससे मालूम होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खास तौर पर असर की नमाज की ताकीद फरमाई। तो अल्लाह वालों, हमारा आज का वजीफा भी असर की नमाज के बाद एक बहुत ही प्यारी कलमा पढ़ने का वजीफा है कि जिसे अगर सिर्फ 7 मरतबा पढ़ा जाए तो 7 जमीन और 7 आसमानों का नूर उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे अदा कर देगा। इसी पर नूर की बारिश बरसती रहेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे की तमाम मुश्किलात को, तमाम परेशानियों को दूर कर देते हैं। उसकी जिंदगी में जितनी भी उलझने हो सब खत्म हो जाती हैं, क्योंकि ये ऐसा वक्त होता है जिसमें इंसान मसरूफियात के अरूज पर होता है। जब असर की नमाज का वक्त होता है और इंसान सारी मसरूफियात को छोड़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद में, अल्लाह पाक के जिक्र में उसकी इबादत करता है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए दुनिया जहां की उलझने खत्म करके खुशहाली पैदा कर देता है और वो इंसान कदम कदम पर कामयाब होता है। रिस्क, माल और दौलत वाफिर मिकदार में उसको अता की जाती है। उसके घर में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की खास रहमतें और बरकतें नाज़िल होती हैं और उसकी औलाद भी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करती है। जो शख्स इस नमाज को छोड़ देता है तो अल्लाह ताला उसके लिए उलझने मजीद बढ़ा देता है। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसकी नमाज असर निकल गई, यानी जो जानबूझकर नमाज असर छोड़े, गोया उसके अहल वयाल, माल दौलत सब उससे छीन लिया जाएगा। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने ठंडे वक्त की 2 नमाजें पढ़ी यानी फजर और असर की तो वो जन्नत में जाएगा। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असर के बाद जो वक्त है ये कबूलियत का वक्त होता है। इस वक्त में अल्लाह रब्बुल इज्जत से अगर कुछ भी सच्चे दिल से मांगा जाए तो फौरन मिल जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स असर की नमाज छोड़ दे गोया उसका सारा अमल बर्बाद हो गया। यह हदीस इस बात की तरफ इशारा करती है कि असर की नमाज ना पढ़ने से इंसान के तमाम नेक अमाल भी बर्बाद हो सकते हैं। यह कितनी बड़ी महरूमी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास दिन और रात के फरिश्ते आते हैं और वो फजर और असर की नमाज में जमा होते हैं। बुखारी और मुस्लिम की इस हदीस पाक से मालूम होता है कि फजर और असर की नमाज के वक्त फरिश्ते हाजिर होकर इंसान के अमाल का मुशाहिदा करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर गवाही देते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज असर की पाबंदी के साथ जिंदगी गुजारता है और उसके बाद दुनिया से रुखसत होता है, उसके लिए जन्नत की बशारत है। असर की नमाज इंसान को दुनिया की मसरूफियात से निकाल कर
اللہ رب العزت کی یاد میں لے آتی ہے۔ دن کے اس وقت جب کاروبار، تجارت، ملازمت اور دیگر دنیاوی امور میں انسان مشغول ہوتا ہے، اس وقت نماز کا ادا کرنا بندے کے اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ دن کی تھکن کے بعد نماز عصر پڑھنا قوت ارادی کو مضبوط کرتا ہے، اور یہ نماز انسان کو سستی غفلت سے نکال کر اللہ کریم کی بندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ جب مسلمان عصر کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کرتے ہیں تو یہ مسلمانوں میں اتحاد، بھائی چارہ اور محبت کو فروغ دیتی ہے۔ اسلام میں جس عمل کی تاکید ہو اس کو چھوڑنے پر سخت وعید بھی آتی ہے۔ عصر کی نماز چھوڑنے والے کے بارے میں حدیث پاک میں آیا کہ جو شخص عصر کی نماز چھوڑ دے گا گویا اس کا سب کچھ برباد ہو گیا۔ یہ حدیث پاک کے خطرناک تنبیہ ہے کہ عصر کی نماز نہ پڑھنے سے انسان دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اس کو اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ آج کے دور میں جب دنیا مصروفیات، کاروبار، دباؤ اور سوشل میڈیا انسان کو غفلت میں مبتلا کر چکے ہیں، اور ایسے میں عصر کی نماز ایک نعمت سے کم نہیں۔ یہ نماز ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی دوڑ میں اللہ پاک کی یاد نہ بھولیں۔ یہ نماز ہماری روحوں کو سکون، دل کو اطمینان، زندگی کو برکت عطا کرتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوں، آپ کے گھر میں رب العزت کا نور برسے، آپ کے گھر میں فرشتے نازل ہوں، تو یہ کلمہ لازمی پڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص پوری رات عبادت کرنے کی مشقت سے عاجز ہے، دولت خرچ کرنے میں بخیل ہے اور دشمن کے ساتھ جہاد کرنے میں بزدل ہے، تو اسے چاہیے زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کا ذکر کرے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے سب سے اچھا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اللہ کے ہاں بہتر و پاکیزہ ہے، تمہارے درجات کو بلند کرتا ہے، تمہارے سونے اور چاندی کی خیرات سے بھی زیادہ افضل ہے، تمہارے دشمن کا سامنا کرنے یعنی جہاد سے بھی بہتر ہو؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل اللہ پاک کا ذکر ہے۔ ذکر سے مراد اللہ رب العزت کو یاد کرنا، اور یہ دین اسلام میں ایک عظیم عبادت ہے۔ ذکر معمول کی تکرار آیات قرآنی یا کتب حدیث میں مذکور دعاؤں کو کہا جاتا ہے۔ زندگی کی اس بھاگ دوڑ میں انسان اکثر اپنے اصل مقصد کو فراموش کر کے بیٹھا ہے، دل پریشان ہوتا ہے، ذہن بوجھل ہوتا ہے اور روح بے چین رہتی ہے، اور ایسے میں ایک عمل ہے جو دلوں کو سکون بخشتا ہے، اندھیروں میں روشنی بن کر چمکتا ہے اور بندے کو رب کے قریب لے جاتا ہے۔ وہ عمل ہے اللہ پاک کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ ذکر صرف زبان سے چند الفاظ دہرانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دل کی وہ کیفیت ہے جو انسان کو اللہ پاک سے جوڑ دیتی ہے۔ جب بندہ سبحان اللہ کہتے تو گویا وہ اپنے رب کی پاکی کو بیان کر رہا ہوتا ہے، الحمدللہ کہہ کر شکر گزاری کا اظہار کرتا ہے اور اللہ اکبر کے ذریعے اللہ پاک کی عظمت کو تسلیم کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان اللہ پاک کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ ذکر ایسی روشنی ہے جو نہ صرف دنیا کے اندھیروں میں راستہ دکھاتی ہے بلکہ قبر کی تنہائی میں بھی اجالا کرتی ہے۔ فرشتے ان محفلوں کو گھیر لیتے ہیں جہاں اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے، اور خود اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کرنے والوں کا ذکر اپنی خاص محفلوں میں فرماتا ہے۔ ذکر کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکیاں بڑھتی ہیں، دل پاکیزہ ہوتا ہے اور روح کو قرار آتا ہے۔ یہ عمل ہر حال میں کیا جا سکتا ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، حتیٰ کہ نیند سے پہلے بھی اپنے دلوں کو اللہ پاک کے ذکر سے زندہ رکھیں۔ اپنی زبان کو لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر سے مزین کریں۔ یاد رکھیں جو زبان دنیا میں اللہ پاک کا ذکر کرتی ہے وہ زبان کل جنت میں حمد کے نغمے گائے گی۔ محترم ناظرین، ذکر کرنے سے دنیاوی فائدے بھی ہیں، اور پہلا فائدہ دل اور ذہنی سکون ہے۔ ذکر ذہنی دباؤ اور بے چینی کو کم کرتا ہے۔ ذکر کرنے سے رزق میں برکت آتی ہے۔ ذکر پریشانیوں اور مصیبتوں سے حفاظت کی روحانی ڈھال ہے۔ ذکر کے جسمانی صحت پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس سے نیکیوں میں اضافہ اور برے کاموں سے بچاؤ ہوتا ہے۔ ذکر سے وقت میں برکت اور زندگی میں نظر
نظم پیدا ہوتا ہے، ذکر کرنے والے کے تعلقات میں بہتری آتی ہے اور مشکلات میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ذکر کرنے والوں کے لیے آخرت میں بھی کافی انعامات رکھے ہیں۔ ذکر کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، قیامت کے دن اس کی نیکیاں میزان میں بھاری ہوں گی، اسے جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا، قبر میں سکون اور روشنی ہوگی، میدان حشر میں عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، فرشتے اس کے حق میں گواہی دیں گے، اسے مغفرت و جہنم سے نجات ملے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ اب چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف کہ وہ کون سا کلمہ ہے کہ جس کے بارے میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے عصر کے وقت یہ کلمہ 7 مرتبہ پڑھا تو اسے 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا نور اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ وہ عظیم کلمہ آیت الکرسی ہے جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن میں سب سے عظیم آیت الکرسی ہے جو عرش الہی کے نیچے سے نازل ہوئی۔ جو شخص فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت کا رکاوٹ ہے۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ عصر کی نماز ادا کر لیں تو اسی جگہ بیٹھے بیٹھے سب سے پہلے درود پاک پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں تو بہتر ہے، اس کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں پھر وہی درود پاک پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس عمل کے بعد عاجزی اور خلوص کے ساتھ ساتھ اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ رب العزت آپ کی تمام حاجتیں پوری فرمائیں گے۔ دعائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی بات سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔